Class 7 we were talking about acids, bases and salts and the taste of some substances. So we were talking whether sugar is sweet, common salt is salty, amla is sour, sour means खट्टा, बेकिंग सोडा इज़ बिटर माने कड़वा. बेकिंग सोडा होता है ना जिससे हम केक वगैरह बनाते हैं, तो वो आप टेस्ट करिएगा तो थोड़ा कड़वा होता है. ग्रेप्स आर सावर, अनराइप मैंगो इज सावर. अनराइप मैंगो कच्चा आम जो होता है. तो you find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. Now acids and bases. Curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. These substances taste sour because they contain acid. ये चीज़ें खट्टी क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें एसिड होता है. The chemical nature of such substances is acidic. और उनका chemical nature हम क्या कहेंगे? They are acidic in nature. The word acid comes from the Latin word acere, which means sour. ये लैटिन वर्ड से ही काफ़ी ओरिजिनेट हुए हैं वर्ड्स केमिस्ट्री में. लैटिन जो है एक लैंग्वेज थी जो इटली की थी. इटली इज़ अ यूरोपियन कंट्री and its capital is Rome. So the ancient language of Italy was Latin. It is a dead language. It's no more in use. But the names of certain substances, certain metals, etc., are named by what they were called in Latin language. So acid means sour and acere word means sour, and this word, Latin word acere, gives us the name acidic or acids. So the acids in these substances are natural acids. So ये जो चीज़ें जिनका नाम अभी हमने आपको बताया, इनमें जितना भी खट्टापन है वो नेचुरल एसिड्स हैं. और हम लोगों ने लेबोरेटरी में भी बहुत सारे एसिड्स बना लिए हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे. इनमें से 3 प्रमुख हैं मिनरल एसिड्स, विच आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, sulfuric acid H2SO4 and nitric acid HNO3. So there are 118 elements which are known to us, or they are written as their symbols. तो उनके formulas जो होते हैं ना, formulae, they are written in the form of letters of English language. Like there is an element carbon, so we have taken capital C as its symbol. Ca is calcium. Now in Ca, remember that if there are many elements with one letter, scientists have named them in such a way that if the first letter is capital, the second will be a small letter. So in calcium, C is capital and A will be small. H is hydrogen, O is oxygen, N is nitrogen. They are all capital letters. But Na is sodium. Why they haven't taken SO? Because the first 2 letters of the name of the element is taken as their symbol. So why not SO from sodium? Actually, sodium in Latin language was known as natrium. So therefore, they took the symbol Na for sodium. Similarly, there is the substance called mercury, para, and its symbol is Hg. Why Hg? Because in Latin language it was known as hydragyrum. In the same way, potassium. They haven't taken P of potassium, it is known as K, because in Latin language it was known as calcium. So therefore, there are certain elements which are named by their names in the Latin language. You will study them later on in higher classes. What about baking soda? Baking soda, you know the formula of baking soda? Baking soda is NaHCO3. Sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, where Na is sodium, H is hydrogen, C is carbon and oxygen is O is oxygen. So if one atom of each element is there, then we don't write Na1, H1, we just write just like that.
But oxygen, there are 3 atoms of oxygen in sodium hydrogen carbonate. Therefore, we write O3. The number is written on the right hand side at the base of the element. So, baking soda, does it also taste sour? If not, what is its taste? Since it does not taste sour, it means that it has no acids in it. It is bitter in taste, कड़वा. If you rub its solution between fingers, it feels soapy. आप इसको रब करें अपने fingers में तो ये थोड़ा सा चिकना soapy लगेगा. Substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases. So, what are these substances called? Bases, which are opposite to acids. The nature of such substances is said to be basic. If we cannot taste every substance, how do we find its nature? अब हर चीज़ तो आप चख नहीं सकते. ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो eatable हैं, you can taste them, but there are many things which cannot be tasted. How will you know whether they are acidic or basic? Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. तो कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट करने के काम में आते हैं, ये जानने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. तो ये सब्सटेंसेस इंडिकेटर्स, INDICATORS, इंडिकेटर्स कहलाते हैं. द इंडिकेटर्स चेंज द कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस. इंडिकेटर क्या करता है? आप एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में उनको मिलाएंगे तो इसका कलर ही बदल जाता है, पता चल जाता है कि ये एसिड है या बेस है. Turmeric, litmus, China rose petals, gudhal, etc. are some of the naturally occurring indicators. तो क्या क्या है indicators? Turmeric जो हल्दी है आपके किचन में रहती है. Litmus अभी बताएंगे क्या होता है. China rose या petals, शू फ्लावर भी कहते हैं. गुड़हल देखा है ना आपने, तो उसके जो पेटल्स हैं उससे एक एक्सट्रैक्ट बनाते हैं जो कि एक इंडिकेटर के काम में आता है, और ये नेचुरली ऑकरिंग है. दे आर नॉट लेबोरेटरी मेड, राइट. सो डू यू नो दैट नेम ऑफ द एसिड एंड वेयर इट इज़ फाउंड? विनेगर जो होती है, जो सिरका जो आप चाइनीज़ फूड में खाते हैं, उसमें एसिटिक एसिड होता है. उसका फॉर्मूला इज CH3COOH. देन फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग. कभी लाल चींटी काट जाए तो फपोला पड़ जाता है, तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, SCOOH. ये भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ा, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में एंड को फॉर्मास कहते हैं. तो उसमें जो उसके स्टिंग में जब काट लेती है तो उसमें जो केमिकल होता है वो उसका नाम दे दिया गया फॉर्मिक एसिड. साइट्रिक एसिड जो है ये साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स, उनमें मिलता है. कर्ड दही में लैक्टिक एसिड. स्पाइनैक पालक में ऑक्सैलिक एसिड. आंवला और साइट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी. विटामिन सी इज एक्चुअली एस्कॉर्बिक एसिड. ये भी लेमन और ऑरेंजेस वगैरह में मिलता है. तो ये विटामिन सी ये जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है. आजकल ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेमन एंड साइट्रस फ्रूट्स को खाना चाहिए. आंवला हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. सो दीज थिंग्स they improve our immunity and resistance to diseases. Therefore they should be consumed, but we have to be cautious that it should not increase the acidity in our stomach. Then tamarind, imli, grapes, unripe mangoes etc. में tartaric acid. जितना आप बाज़ार में डोसा खाते हैं ना, सांभर में इमली पड़ता है. अब इमली अवेलेबल ना हो तो ये डायरेक्ट टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, which makes it very sour. Now these acids they occur in nature, but and some bases. Now we come to bases. Lime water में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH को ब्रैकेट में करके 2. Instead of writing CaO2H2, we just make OH in a bracket and write at the base right hand side 2. So कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना होता है घर में जो पान में खाया जाता है, उसको लेके पानी में घोल लीजिए, ज़्यादा नहीं घोलता, और उसको थोड़ी देर घोलने के बाद छोड़ दीजिए. जो ऊपर का हिस्सा मिल जाएगा या छान लीजिए उसको,
तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी या लाइम वाटर कहलाता है। एक विंडो क्लीनर्स मिलते हैं, जैसे आपके जो एक लिक्विड मिलता है कॉलिन्स वगैरह, तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH। देन जितना आपके सोप्स होते हैं साबुन, उनमें पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है। दे आर बेसिस ऑल ऑफ देम। जिनमें भी OH लिखा दिख रहा है आपको, दे आर ऑल बेसिस, और जहाँ सिर्फ H हो दे आर एसिड्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज MgOH होल ट्वाइस। ये जब एसिडिटी हो जाती है तो ये डॉक्टर्स हमको प्रिस्क्राइब करते हैं खाने के लिए। नाउ व्हाट आर द नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस? हमारे चारों तरफ कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स हैं? लिटमस इज़ अ नेचुरल डाई। The most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from lichens. अब lichens क्या होते हैं ये आप पढ़ेंगे, जहाँ पे एक तरह के प्लांट होते हैं एल्गी, और एक तरह की फंगस होती है जो मॉस, तो वो दोनों मिलके रहते हैं। जो मॉस होगी वो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लेती है, और एल्गी ग्रीन होती है तो वो सूरज की रोशनी में अपना खाना बना के और उसको भी प्रोवाइड करती है मॉसेस को, एल्गी एंड फंगस। तो ये दोनों को जो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, तो ये लाइकेंस कहलाते हैं। अब इनसे क्या करते हैं, इनको उबाल के छान लेना, उसका एक्सट्रैक्ट कहलाता है। तो वो मिलता है ये जो मॉव यानी पर्पल कलर का होता है। और अगर उसको हम डिस्टिल्ड वाटर क्या है, जिसमें कोई केमिकल्स ना हो, बनता कैसे डिस्टिल्ड वाटर? पानी को उबालते हैं और हमारे पास ट्यूब्स होती हैं, डिस्टिलेटिंग ट्यूब्स, तो उसमें जब पानी गुजरता है पाइप्स में और चारों तरफ ठंडा पानी चलता रहता है बिना अंदर के भाप को छुए, तो भाप ठंडी होके और साफ़ और शुद्ध पानी जो आप बैटरीज में यूज़ करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, कई बार वूंड्स को साफ़ करने के काम में भी डिस्टिल्ड वाटर आता है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। तो उसमें अगर आप लाइकेंस के एक्सट्रैक्ट घोलेंगे तो पर्पल कलर का एक सब्सटेंस आपको मिल जाएगा, एक लिक्विड मिल जाएगा। तो वो आप उससे स्ट्रिप्स भी बन जाती हैं, लिटमस की स्ट्रिप्स भी बन जाती हैं और लिक्विड्स भी मिल जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक है? तो जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस के स्ट्रिप को या सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा? अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो ब्लू जो है वो रेड में बदल जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू रेड में बदल जाएगा। और बेसिक सॉल्यूशन में जो रेड कलर का लिटमस, दो तरह के लिटमस पेपर है, एक ब्लू है एक रेड है, तो जो ब्लू वाला एसिडिक सॉल्यूशन में रेड में बदल जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में रेड वाला ब्लू में बदल जाता है। इस बात को याद रखिए। तो दो तरह के ये मिलते हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर या टेस्ट ट्यूब में आप पानी और लेमन जूस लीजिए, उसमें थोड़ा सा जो है सॉल्यूशन डाल दीजिए लिटमस पेपर की स्ट्रिप के ऊपर ड्रॉपर की मदद से। तो क्या होगा कि अगर ब्लू होगा तो वो रेड में बदल जाएगा, अगर रेड है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ब्लू वाला रेड में बदल जाएगा, रेड वाला ब्लू में नहीं बदलेगा। नाउ you have to do certain activities to find out whether this particular liquid is acidic or basic. Tap water कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। डिटर्जेंट सॉल्यूशन जो जिससे हम कपड़े धोते हैं बेसिक होगा। और एरेटेड ड्रिंक जो है वो थोड़ी एसिडिक होती है, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है क्योंकि CO2 घुली रहती है जो H2O + CO2 H2CO3 बना देती है। सोप सॉल्यूशन बेसिक है, शैम्पू बेसिक है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल है, शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है, विनेगर एसिडिक है, बेकिंग सोडा NaCO3 बेसिक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक है। और वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा क्या होता है?
जो जिससे कपड़े धुलते हैं उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये डिफरेंट है बेकिंग सोडा से, तो ये भी बेसिक होता है। लाइम वाटर बेसिक है, आपको बताया चूने का पानी। इनको आप बना के अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करिए, देखिए कि ये एसिडिक है या बेसिक है। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस में बताया जिनका लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। So the solutions which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions. They are neither acidic nor basic. Now another natural indicator is turmeric, हल्दी। हल्दी जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर आपके कभी हैंकी पे कपड़ों पे हल्दी का दाग पड़ जाए और आप उसको सोप में धोएंगे तो बिल्कुल रेड हो जाएगा। इसको आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। एक वाइट हैंकी पे थोड़ा हल्दी घोल के पानी में उसका ड्रॉप डाल दीजिए और उसके बाद साबुन के पानी में आप डालेंगे और उसको सुखाएंगे तो बिल्कुल रेड कलर, रेड से मतलब है थोड़ा सा जिसको बोलते हैं मैजेंटा कलर का हो जाएगा। तो आप क्या करें, एक चम्मच हल्दी लेके और उसमें थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लें और उसके बाद एक पेपर बना लें, एक ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर होते हैं, उनके ऊपर उसको पेस्ट को लगा दें और सुखा लें और उसके बाद उसकी छोटी छोटी स्ट्राइप्स काट लें, जो आपको येलो पेपर मिलेगा। अब आप इस पर सोप सॉल्यूशन डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। तो ये बताता है कि इसका मतलब है कि जो बेसिक सॉल्यूशन होता है ना सोप वगैरह का, उसमें हल्दी रेड हो जाती है। आप उससे इस तरह से आप एक बर्थडे कार्ड बना सकते हैं। एक टर्मरिक पेस्ट बना दीजिए, उसके ऊपर सोप सॉल्यूशन से आप फ्लावर वगैरह बना के एक कागज़ पे लगा के और उस पर एक अगर आप फ्लावर बना दें सोप सॉल्यूशन से तो बहुत सुंदर एक पैटर्न बन जाएगा। चाइना रोज़ मैंने बताया गुड़हल का जो फूल होता है, तो उससे भी आप पेटल्स लेके और बीकर में डालिए और उसमें गर्म पानी मिलाइए और उसको तब तक पड़े रहने दीजिए जब तक वाटर कलर नहीं हो जाता। तो ये जो मिलेगा आपको वो इंडिकेटर मिल जाएगा। अब इसका ये जो आपको सॉल्यूशन मिला है वो स्लाइटली पर्पल है, थोड़ा सा पर्पल है, और एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाता है। केमिस्ट्री आप आगे जाके देखेंगे, इट्स लाइक मैजिक, ऐसे कलर्स बदलते हैं इसमें सॉल्यूशंस के या केमिकल्स के। तो एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक या मैजेंटा, बेसिक में ग्रीन हो गया है, याद रखिए। तो ये टर्मरिक सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है जूस पे, लेमन जूस पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये एसिडिक है या न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में ही टर्मरिक जो है वो रेड होती है। सिर्फ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा और लाइम वाटर में ये जो है टर्मरिक रेड हो जाती है। दैट शोज दैट दे आर बेसिक इन नेचर। बाकी सारे एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे क्योंकि उस पर टर्मरिक का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे टेबल 5.4 में आपको ये जो गुड़हल के फूल का एक्सट्रैक्ट है, चाइना रोज फ्लावर एंड इट्स इंडिकेटर व्हाट इफेक्ट इट हैज़ ऑन द शैम्पू, ग्रीन हो जाता है। लेमन जूस मैजेंटा हो जाता है। सोडा वाटर इनिशियली तो थोड़ा स्लाइट पिंक है, सोडा वाटर में ग्रीन हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन या बेकिंग सोडा में ग्रीन हो जाएगा। विनीगर एसिडिक है तो मैजेंटा हो जाएगा। शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो ये वैसे ही रहेगा जैसे था, रेड जिसको कहते हैं। कॉमन सॉल्ट में भी रेड रहेगा क्योंकि वो न्यूट्रल हैं ये सॉल्यूशंस। उसके बाद द टीचर्स रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग। ना कॉफ़ी आप पीते हैं ना, होती तो बिटर है, कड़वी है, लेकिन बेसिकली क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। टेस्ट करके देखेंगे तो एसिडिक निकलती है।
The teacher is requested to get the following dilute chemicals from his or school laboratory or from a nearby school: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide और lime water. तो ये सब जो है आप को लैब में मिलेगा. तो इनके अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं. जैसे डाइल्यूट HCl एसिडिक होता है तो लिटमस पेपर को ब्लू को रेड कर देगा और टर्मरिक पे कोई असर नहीं करेगा. चाइना रोज सोल्यूशन को मैजेंटा कर देगा. तो ये आप इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड विल शो द सेम रिजल्ट्स. नाइट्रिक एसिड ऑल्सो विल शो द सेम रिजल्ट्स बिकॉज ऑल द थ्री आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स. दे आर नोन एज मिनरल एसिड्स. लैब में बनाए जाते हैं ये. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने इनके फॉर्मूले आपको बताए हैं. HCl इज़ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसमें डाइल्यूट को DIL लिख देते हैं. जिसमें पानी ज़्यादा वो डाइल्यूट, जिसमें पानी कम है वो कॉन्सेंट्रेटेड CONC करके लिखते हैं. और दूसरा हो गया H2SO4 दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें सल्फ़र है, देखिए S सल्फ़र, राइट. और ये की Cl क्या है? क्लोरीन. CHLORINE उसका Cl उसका सिंबल है. और HN3 इज़ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन का एसिड है. वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स दे आर and you can test them for the acidity by using litmus paper, turmeric paper और China rose solution. अमोनियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट करिए तो क्या होगा? लिटमस पेपर जो रेड होगा ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. टर्मरिक पेपर जो है वो रेड हो जाएगा और चाइना रोज़ ग्रीन हो जाएगा बेस में. तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये सारे जितने हैं ये बेस हैं. इसी तरह NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो इन सब में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. मैंने बताया ना सोडियम क्या होता है? नाइट्रियम से बना है. Na इसका सिंबल है. एसिड रेन क्या होती है? देखिए कि इससे जो है बहुत डैमेजिंग होती है. तो ये रेंज होती है जब हवा में ज़्यादा एसिड्स हो जाते हैं. तो उसमें जब बारिश होती है तो उसके साथ एसिड्स नीचे आ जाते हैं बारिश के साथ. तो ये कहाँ से आते हैं एसिड्स? क्योंकि जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये होता है CO2, NO2, SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जब हवा में ज़्यादा हो जाते हैं तो पानी के साथ मिलके ये एसिड्स बना देते हैं जो नीचे आ जाते हैं पानी के साथ. बिल्डिंग्स को डैमेज करते हैं, हम लोग की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को अफेक्ट करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज करते हैं और बिल्डिंग्स को डैमेज करते हैं. हमको जो स्किन डिजीज़ हो जाती हैं. तो इसलिए हवा में हमें कम से कम ये इस तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं ये इनको कम से कम रिलीज़ होना चाहिए हवा में. और CO2 तो आप जानते हैं जितना आप पेड़ ज़्यादा उगाएंगे उतनी ही कम रहेगी हवा में. इसी तरह जितने भी व्हीकल्स के जितने भी गैसेस निकलती हैं उनमें ये होते थे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड. आप क्या कर रहे हैं? अब CNG और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक्सेट्रा ये यूज़ करी जाती है इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल. और जितने ये एसिड्स जो अभी बताएं कॉरोसिव है नेचर में, मतलब जलाते हैं स्किन को, इसलिए इनको जो है बहुत ही कॉशियसली डील करना होता है लैब में. न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन क्या है? So we have learned that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. So what happens when we mix these two acids and bases? So now we are going to use an indicator which is called phenolphthalein. Phenolphthalein spelling देख लीजिए इसकी. phenol PHENOL फ वर्ड आ रहा है तो PH था THA lean LEIN. तो break up the word to learn its spelling. You will be listening to this word and writing this word in your future classes also. So better learn it. Phenolphthalein. And what is its effect on acids, bases and neutral solutions? अब आप क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए और
फिनोफ्थलीन का कलर देखिए क्या है। तो फिनोफ्थलीन जो होती है पिंक कलर की होती है, ठीक है। अब आप इसमें इंडिकेटर एसिड में डाल दीजिए तो वो कलर जो है वो गायब हो जाएगा, रेड कलर या पिंक कलर। अब उसमें आप NaOH डालना शुरू करिए ड्रॉपर से और उसको हिलाते रहिए। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि एक ही ड्रॉप जब आप ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो फिर से पिंक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से एक ड्रॉप HCl की डालिए, फिर वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये आप चेंज ऑफ कलर्स देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिनोफ्थलीन जो है अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो पिंक हो जाती है और एसिडिक है तो कलरलेस रहती है। फिनोफ्थलीन बेसिकली इज कलरलेस, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरह दिखा दिया है, एसिडिक में कलरलेस और बेस में पिंक हो जाती है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, एसिड प्लस बेस दे मेक सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एसिड है, ये एक बेस है। इनका रिएक्शन कराने पर सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाता है प्लस वाटर H2O। आप आगे जाके देखेंगे कि इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। बीच में एक एरो होता है जो बताता है कि ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। अब जो है ये बैलेंस्ड होने चाहिए। इधर जितने एटम्स हैं एक एलिमेंट के उतने ही राइट हैंड साइड में। अब देखिए यहाँ 2H के हैं ना, तो 1 और 2 दो H के हैं यहाँ पे, बैलेंस्ड है इक्वेशन। तो जो है ये NaCl क्या है, इट्स अ सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा है, कॉमन सॉल्ट। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सॉल्ट इन द नेचर, वन ऑफ विच इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, एंड दिस इज कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं खाने में, salt which we eat in our food. When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. दोनों एक दूसरे के effect को neutralize कर देते हैं. When an acid solution and a base solutions are mixed in suitable amounts, ज़रूरी नहीं है इक्वल ही अमाउंट, भाई जितना दूसरे से एक रिएक्ट कर रहा है उतना ही ऐड करना है। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कितना कितना। तो दोनों का जो नेचर है, एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर, ये ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इससे जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है ना एसिडिक ना बेसिक। अब जैसे कई बार मैचेस होते हैं ना, तो मैचेस ड्रॉ हो जाते हैं, ना कोई एक भी नहीं जीतता, लेकिन अगर एक ने भी एक रन भी ज़्यादा बना लिया तो वो जीत जाता है। तो यहाँ पर भी यही है कि एसिडिक और बेसिक अगर इक्वल बराबर अमाउंट्स में मिलाए जाएँ तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। और एक को ज़्यादा मिला दिया तो सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो जाएगा, अगर बेस मिला दिया तो बेसिक हो जाएगा। अब जो है अब इसको टच करिए आप, किसको, अपना जो आपका जो टेस्ट ट्यूब है, तो आप क्या देखेंगे वो गर्म हो गई। इसका मतलब है हीट इज़ इवॉल्व ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन and it raises the temperature of the reaction mixture, and a new substance is formed which is called salt. It can be, it's not neutral always. यहाँ NaCl तो न्यूट्रल है, लेकिन कई बार न्यूट्रल नहीं भी हो सकता. It can be acidic, basic or basic or neutral. So how will you define a neutralization reaction? The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. तो आपने क्या लिख दिया, acid plus base is equal to salt plus water and heat is evolved. For example, HCl plus NaOH forms sodium chloride, NaCl and water. अब वो जो अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड ले लें और उसको लाइम वाटर में ऐड करें तो भी हीट इवॉल्व होगी। इसका भी रिएक्शन आप आगे चल के पढ़ेंगे। एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ काम आता है, इनडाइजेशन, कभी अपच हो जाता है आपके पेट में, आपको लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है, भूख नहीं लग रही है, तो वो ड्यू टू एसिडिटी। वाई, बिकॉज आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारी आपने पढ़ा है ना अपने बायो में, कि जो बायोलॉजी पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था स्टमक में जो है हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़
मच एसिडिक देन इवन लेमन, नींबू से भी ज़्यादा खट्टा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारी स्टमक उसको क्यों रिलीज़ करती है? जिससे कि जितना खाना आ रहा है उसके जितने बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं। लेकिन इससे हमारी स्टमक की लाइनिंग अफेक्ट भी हो सकती है, डैमेज हो सकती है, तो उसके लिए म्यूकस जो है वो रिलीज़ किया जाता है। अब कई बार आपने गलत शलत खा लिया, उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा पहुंच गए स्टमक में, तो अब एसिड ज़्यादा रिलीज़ करने लग गई जाएगी आपकी स्टमक, जिससे अब आपको इंडाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, बट much of acid in the stomach causes indigestion. Sometimes indigestion is painful. To relieve indigestion, we take an antacid. हम क्या लेते हैं? Antacid, like milk of magnesia, which is MgOH whole twice. ठीक है? Which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. Excessive ज़्यादा जो बन गया है उसको वो ख़त्म करता है. Ant bite, चींटी का काटना. When an ant bites, it injects the acidic liquid or formic acid into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda or sodium hydrogen carbonate. ये NaHCO3. बेकिंग सोडा घर में होता है, चींटी काट ले तो आप तुरंत उस पर रब क्या कर रहे हैं? बेकिंग सोडा या NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. और कैलामाइन सोल्यूशन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है. कैलामाइन पहले एक कॉस्मेटिक आती थी जैसे फेस पे लगाते हैं ना, क्रीम टाइप की, उसको बोलते थे लैक्टो कैलामाइन, तो उसमें जिंक कार्बोनेट होता है. सॉइल ट्रीटमेंट. एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक. ज़्यादा आप ये यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स तो सॉइल जो है एसिडिक हो जाती है. लाइक नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, यूरिया या कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट एंड ऑल दीज, तो उससे सॉइल एसिडिक हो जाती है और उसमें पेड़ अच्छे से उगते नहीं हैं क्योंकि सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो गई या बेसिक हो गई है. जब ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो उसको बेसिस से ट्रीट किया जाता है, जैसे क्विक लाइम. क्विक लाइम इज़ कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice. If the soil is basic, an organic matter is added to it. अगर सॉइल बेसिक हो जाए तो उसमें हम जो आपकी कंपोस्ट खाद होती है ना, ऑर्गेनिक मैटर, उसको ऐड कर देते हैं. तो वो जो है इट रिलीजेज एसिड एंड विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल. Factory waste of many factories contain acids. If they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms. अगर हम फैक्ट्री वेस्ट जो ज़्यादातर एसिडिक होते हैं उनको नदियों में भेज दें तो मछलियाँ वगैरह तो मर जाएंगी. तो इसलिए द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस. अभी गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया हुआ है कि जो भी ये एफ्लुएंट्स कहलाते हैं, ये जो फैक्ट्री वेस्ट हैं, उनको पहले आप बेसिस से ट्रीट करें, उसके बाद आप नदियों में बहाएं उनको. Now we come to the exercises. State the difference between acids and bases. Acids are sour and turns blue litmus red. Bases are bitter and turn red litmus blue. Ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? It is basic in nature. Name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? Litmus solution is obtained from lichens, LICHENS, and it is used as an indicator. Is the distilled water acidic, basic or neutral? How would you verify it? Distilled water is neutral because it has no effect on blue and red litmus paper. Describe the process of neutralization with the help of an example. So the reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. You can write down the example of hydrochloric acid plus sodium hydroxide is equal to sodium chloride and water. True or false? Nitric acid turns red litmus blue. It is false. It's an acid. It turns blue to red. Sodium hydroxide turns blue litmus to red. No. Sodium hydroxide is a base. It turns the red litmus to blue.
Sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. Yeah, this is a neutralization reaction. It is true. Indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solutions. True. Indicator. Tooth decay is caused by the presence of a base. No, it's false. Tooth decay जो होती है जब हम कोई मीठा वगैरह खाते हैं तो हमारे जो माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो उस स्वीट को एसिड में बदल देते हैं और वो एसिड जो है हमारे दांतों को ख़राब करने लगता है. कोई कीड़ा नहीं लगता है उसमें, गलने लगता है दांत और उसको हम टूथ डिके बोलते हैं. तो एसिड्स जो है हमारे दांतों को भी ख़राब करते हैं. तो हमको जितने भी ये टूथपेस्ट होते हैं दे आर ऑल बेसिक इन नेचर. इसीलिए Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants a neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? So Dorji can decide by the use of an indicator. If the sample of a drink turns red litmus blue, it is basic. If it turns blue litmus red, it is acidic. If it has no effect, if the drink has no effect on the litmus paper, then it is neutral. Explain why an antacid tablet is taken when you suffer from acidity. So antacids are nothing but bases. When there is an excess of acid in stomach, antacids are taken. Antacids neutralize acids and relieve us. Calamine solution is applied on the skin when an ant bites. Ant injects an acid during bite which causes a burning sensation. Calamine solution is basic in nature. It contains zinc carbonate and it neutralizes the acid and relieves us from our pain. Factory waste is neutralized before depositing into the water bodies. Factory waste contain both acidic and basic substances which are harmful for the organisms living in water, so they have to be neutralized. If they contain acids, they have to be neutralized by a base, and if they are basic, then they have to be neutralized by acids. 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another sodium hydroxide, and the third is a sugar solution. How will you identify them? And if you have only turmeric indicator, so turmeric indicator turns red in bases, so acid state is not affected and neither by neutral substances. So first we will identify the base. Now base is actually sodium hydroxide, so if we add turmeric in it, it will turn red. And if one of them is an acid and we add turmeric, it will remain yellow. Because first what you do is the base is taken and turmeric is added, it will turn red. Then one of the solutions is added to it gradually. If the solution turns yellow again, the added liquid is hydrochloric acid because it has neutralized the base. Otherwise the added liquid is sugar solution. That's how you can identify the 3 of them. तो एक बार फिर समझ लीजिए, बेस का सॉल्यूशन लिया, वो उसमें आपने टर्मरिक ऐड करी, वो रेड हो जाएगा. उसके बाद उन तीनों में से जो एक तो ये बेस हो गया, तो दूसरा आपने ऐड करा. अगर ये फिर से येलो हो जाए तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और नहीं होता येलो तो इसका मतलब है वो शुगर है. अब इसमें आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं, कौन सी गलत हैं. तो सिर्फ डी वाली सही है. चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर. बाकी सब गलत हैं. तो आप जो है इसको पढ़िएगा और देखिएगा, वो सब गलत है. तो दिस फिनिशेस योर चैप्टर. प्लीज़ डू द
exercises in your copy and learn it. कुछ चैप्टर्स रह गए हैं आपके, उसके बाद आपका हाफ ईयरली का पेपर दिया जाएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे.